درخواست ہے پہلے ہمیں بتایا جائے کہ کیا بیرون ملک کی مدد سے رجیم چینج کی جا سکتی ہے پاکستان میں؟ کیا یہ آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ کیا پاکستان کی عوام کٹ پتلیاں ہیں؟ کیا ہم پاکستانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا ہم غلام ہیں؟ یا لیڈر آف اپوزیشن کے بقول ہم بیگرز ہیں، فقیر ہیں؟ جناب اسپیکر اگر ہم غیرت مند قوم ہیں، تو یہ تماشا نہیں چل سکتا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم پہ جو گزری وہ گزری، مگر ہے شب ہجراں میرے عشق تیری عاشق عاقبت سوار چلے۔ رولنگ اس کے اوپر آنی چاہیے اسپیکر صاحب کہ آرٹیکل 5 کے یہ متضادم ہے کیا نہیں ہے، پہلے آپ اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی طے کریں پھر آگے بڑھیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک 8 مارچ 2022 کو پیش کی تھی۔ عدم اعتماد کی تحریک آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔ وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ قرارداد میں مسترد ڈسالاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ ایوان کی کارروائی فروغ کی جاتی ہے۔ فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 54 کی شق 3 کے تحت تجویز کردہ اختیارات کو بروقار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کا جمعہ 25 مارچ 2022 کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پر بذریعہ حاضر برخاست کرتا ہوں۔ حضرت کیسر، اسپیکر قومی اسمبلی۔ تحریک عدم اعتماد ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جانب سے مسترد کر دی گئی۔ قومی اسمبلی کا اہم ترین اجلاس جو آج ہونے والا تھا، تحریک عدم اعتماد جو ایک تاریخ رقم کرنے والی تھی، اب صورتحال یکسر مختلف ہو چکی ہے۔ فواد چودھری نے قانونی نکات پیش کرتے ہوئے آئین کے حوالے سے کہا کہ کسی غیر ملک کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں رجیم کو چینج کر سکے، اور اس کے بعد قاسم سوری نے اپنے مختصر ترین نوٹ میں یہ کہا کہ تحریک عدم اعتماد قانونی اور آئینی ہونا ضروری ہے، اور فواد چودھری کے آرٹیکل بیان کرنے کے بعد یہ تاریخ رقم ہوتے ہوتے رہ گئی کہ تحریک عدم اعتماد مسترد کی جا چکی ہے ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے۔ اور یہ تیسرا موقع ہے کہ کسی بھی منتخب وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی ہو، اور جو سرپرائز کی بات کی جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، بارہا متعدد مرتبہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے دن، جس دن ووٹنگ ہوگی، اس دن تمام اپوزیشن رہنماؤں کو اور ان کے ارکان کو سرپرائز ملے گا۔ یہ ہے وہ سرپرائز وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کر دیا ہے، اور اجلاس میں حکومتی بینچوں کی جانب سے امریکہ کا جو یار ہے، غدار ہے کہ نعرے بھی لگائے۔ سب سے پہلے فواد چودھری کو انہوں نے مائک دیا اور بولنے کا موقع دیا۔ یہ ایک پورا پری پلان طریقے سے تمام تر چیزیں ہوئی ہیں، اور اسپیکر نے اب اجلاس بھی ملتوی کر دیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد پیش کرنا اپوزیشن کا حق ہے، فواد چودھری نے اپنے خطاب میں ایسا کہا، مگر اس بار صورتحال کچھ مختلف ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے بیرونی سازش ہے، یہ بات اب واضح ہو گئی ہے۔ مائک آن کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دی ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ فواد چودھری ایک پرچی پہ لکھی ہوئی تقریر پڑھ رہے تھے، جو کہ فی البدی بولنے کے ماہر ہیں، لیکن آج ان کی چونکہ امپورٹنٹ نوٹس تھے اور انہوں نے اس پہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کنفیوژن نہ رہے، اس لیے وہ ایک پیپر میں لکھ کے لائے تھے جو کچھ بھی ان کو بولنا تھا۔ انہوں نے بھی ایک مختصر سا خطاب کیا اسمبلی میں، اور جس کے بعد ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے رولنگ دیتے ہوئے اپنے مختصر ترین نوٹس میں کہا کہ تحریک عدم اعتماد غیر آئینی ہے، آئین کے منافی ہے، اس لیے اسے مسترد کیا جاتا ہے۔ عدم اعتماد آئین کے منافی ہے، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اپنی رولنگ دیتے ہوئے منع کر دیا ہے۔ کیا کہنا تھا ان کا، ایک مرتبہ پھر ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم پہ جو گزری وہ گزری، مگر ہے شب ہجراں میرے عشق تیری عاشق عاقبت سوار چلے۔ رولنگ اس کے اوپر آنی چاہیے اسپیکر صاحب کہ آرٹیکل 5 کے یہ متضادم ہے کیا نہیں ہے، پہلے آپ اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی طے کریں پھر آگے بڑھیں۔
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तहरीक का आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। हज़रत कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली। सरप्राइज हुकूमत की जानिब से दे दिया गया है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद को आइन के मुनाफी करार देते हुए उसे मुस्तरद कर दिया। तारीखी मौका है पाकिस्तान की सियासी तारीख में, कौमी असम्बली का इजलास अब मुस्तरद हो गया है। हम ये देख रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद की जा चुकी है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से अदम एतमाद गैर आईनी और आइन की मुनाफी है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ये रूलिंग देते हुए कहा और तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ रूलिंग दे दी है और इसे मुस्तरद कर दिया है। जैसे ही इजलास शुरू हुआ, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने फवाद चौधरी को माइक दिया और वक्फा सवालात के दौरान फवाद चौधरी ने जो डिसाइडेड था, एक चीज जो डिसाइडेड थी उसके ऊपर उन्होंने पर्ची से पढ़ी और उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पेश करना अपोजिशन का हक है, मगर इस बार ये सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नजर आती है। और साथ साथ फवाद चौधरी ने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक के पीछे हमको लगता है कि बैरूनी साजिश है और ये बात वज़ीर आज़म भी कई बार कह चुके हैं और ये बात अब वाज़े हो गई है। फवाद चौधरी ने क्या कुछ कहा और डिप्टी स्पीकर ने किस तरह तहरीक को मुस्तरद किया, आइए आपको एक बार फिर दिखाते हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम पे जो गुजरी वो गुजरी, मगर है शबे हिजरा मेरे इश्क तेरी आश्क का आकबत सवार चले। रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब कि आर्टिकल 5 के ये मुताबिक है क्या नहीं है। पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें, फिर आगे बढ़े। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तहरीक का आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। हज़रत कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली। मदद के लिए मिलता। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि 25 मार्च को जो इजलास था वो उसको कलअदम करते हैं और हुकूमत ने ये सरप्राइज दे दिया है। अदम एतमाद की करारदाद आइन के मुनाफी है। फवाद चौधरी का ऐसा कहना है तहरीक आइन के आर्टिकल के मुतसादिम है और उन्होंने तजवीज़ किया कि इसको मुस्तरद किया जाए, जिस पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया। ये भी हम आपको बताते चले कि वजीर आज़म इमरान खान अब से कुछ देर बाद कौम से खिताब भी करेंगे और जिस सरप्राइज का वो जिक्र करते रहते थे गालिबन वो यही सरप्राइज था कि तहरीक अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी मुस्तरद कर देंगे और मुस्तरद कर दी गई है। कहना यह है कि किसी भी गैर मुल्की ताकत को यह हक हासिल नहीं कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज करे और चूंकि तहरीक अदम एतमाद एक गैर मुल्की साजिश है इसलिए यह आइन और कानून के मुनाफी है। ये कहना था डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का और इस नोट्स के साथ उन्होंने तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी है। अब इसके ऊपर मजीद भी गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन इस वक्त हम आपको बताते चलेंगे फवाद चौधरी ने अपनी स्पीच का आगाज किया। एक पेपर पे लेकर लाए थे वो ये स्पीच, उन्होंने शेर भी पढ़े और साथ साथ उन्होंने ये इस पूरी तहरीक अदम एतमाद को एक गैर मुल्की साजिश करार दिया। कहना उनका ये था कि 7 मार्च को एक लेटर मौसूल होता है जिसमें तहरीक अदम एतमाद का जिक्र था, गैर मुल्की साजिश है और इस गैर मुल्की साजिश आइन के खिलाफ है। इन्हीं जुमलों को लेते हुए वो आगे गए हैं और उसके बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भी इस हवाले से यही रूलिंग देते हुए इन्हीं जुमलों का जिक्र किया और अपने मुख्तसर तरीन जुमलों के बाद उन्होंने इस अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया है।
عدم اعتماد آئین کے متصادم ہے اور کسی غیر ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے ملک میں مداخلت کرے. تحریک آئین کے آرٹیکل کے متصادم ہے اور اس کو مسترد کیا جائے. حکومت نے یہ سرپرائز دیا ہے. عدم اعتماد کی قرارداد آئین کے منافی ہے. انتظار حیدری ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے. انتظار بتائیے گا یہ اچانک کس قسم کا سرپرائز مل گیا ہے؟ کیا پوزیشن ہے اس وقت اپوزیشن کی اور حکومتی بینچز پہ کیسا جشن ہے؟ جی دیکھیں اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ مسلسل ہکا بکا رہ گئی ہے اور جس طرح سے جو ہے وہ فیصلہ سنایا گیا ہے اسپیکر کی طرف سے اس پر اپوزیشن حیران تھی کہ یہ کس طرح سے یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو اس اجلاس کی کارروائی جو ہے وہ وقفہ سوالات پہ شروع کی گئی. تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ جو اگلے ایجنڈے پر تھی اسے ابھی لیا ہی نہیں گیا تھا. پہلا سوال تھا فواد چودھری کا جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات کے ساتھ اب قانون و انصاف کا قلمدان بھی سنبھالے ہوئے ہیں. انہوں نے جیسے ہی فلور لیا تو انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 95 کے تحت اپوزیشن کی جانب سے قومی اسمبلی کے اندر جو تحریک عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تھی 8 مارچ کو، آج اس کے حوالے سے ایک کہ نیشنل اسمبلی کے ہمارے اسپیکر نے مسترد کیا، ریجیکٹ کیا ایک وہ موو ریجیم چینج کی جو کوشش کی گئی تھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں، ایک باہر سے پلان کیا ہوا نو کانفیڈنس موشن جس کے پیچھے ایک فورن ایجنڈا تھا، اور جو آج اسپیکر نے اس کو جو ریجیکٹ کیا ہے اور یہ نو کانفیڈنس کو جو ریجیکٹ کیا، میں ساری قوم کو آج مبارک دیتا ہوں. مجھے کل سے اتنے لوگ پیغام دے رہے تھے کہ جی پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ساری قوم کے سامنے یہ ایک غداری ہو رہی تھی، غدار بیٹھے ہوئے تھے اور سازش ہو رہی تھی. اور میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں گھبرانا نہیں، اللہ اس قوم کے اوپر دیکھ رہا ہے. 27 رمضان کو یہ پاکستان وجود میں آیا تھا. یہ اس طرح کی سازش انشاءاللہ یہ قوم کامیاب نہیں ہونے دے گی. تو جو اسپیکر نے آج جو اپنی اتھارٹی، اپنی جو پاور، کانسٹیٹیوشنل پاور یوز کر کے جو فیصلہ کیا ہے، اب اس کے بعد میں نے ابھی سے پریزیڈنٹ صاحب کو وہ بھیج دیا ہے، ایڈوائز بھیج دی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں. ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہم ڈیموکریٹس عوام کے پاس جائیں، عوام سے الیکشنز ہوں، عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس کو چاہتی ہے. کوئی باہر سے سازش اور اس طرح کے لوگ، کرپٹ لوگ، پیسے کی بوریوں سے لوگوں کو خرید کے اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ نہ کریں. وہ لوگ جو سارے اچکن سلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کروڑوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا لوگوں کو خریدنے کے لیے، یہ سارا پیسہ انشاءاللہ ضائع ہوگا. اور جن لوگوں نے یہ پیسہ لیا ہے، میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ کوئی ابھی بھی کوئی ثواب کما لیں، کہ کوئی پناہ گاہ پہ لگا دیں، کوئی یتیم خانہ کھول دیں، کوئی غریبوں کے لیے میں پیسہ ڈسٹریبیوٹ کریں. اور میں اپنی قوم کو آج کہتا ہوں کہ آپ الیکشنز کی تیاری کریں اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے. کسی باہر کی قوت، کسی کرپٹ لوگوں نے فیصلہ نہیں کرنا کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس ملک کا. اور انشاءاللہ ہم پریزیڈنٹ صاحب کو جب ایڈوائس چلا جائے گا، اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں گی اور پھر آگے جو بھی پروسیجر ہے اگلے الیکشن کا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، وہ اب شروع ہو جائے گا. میں اپنی قوم کو مبارک دیتا ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی سازش جو ملک سے کی جا رہی تھی، ایک الیکٹڈ 22 کروڑ کی قوم جس کی الیکٹڈ حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے، اس سازش سے وہ آج فیل ہو گئی ہے. پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا کہہ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسپیکر کو انہوں نے صدر مملکت کو انہوں نے ایڈوائز کی ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کریں اور تھوڑی دیر کے بعد صدر مملکت عارف علوی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں گے. اینکر پرسن ثنا ہاشمی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ثنا، سرپرائز ہو گئی ہیں آپ یا نہیں ہوئی؟
सना हाशमी से भी हम राब्ता करेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी एक मुख्तसर खिताब किया कौम से, और उसके बाद असम्बलियाँ तहलील करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि सदर को असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान, जिनके खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पेश की गई थी, जिसमें आज वोटिंग होनी थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने इसे गैर आईनी और कानून के मुनाफी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया, जिसके फौरी बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कौम से मुख्तसर खिताब किया। मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि वो कौम जो है अब इलेक्शन की तैयारी कर ले, क्योंकि सदर को असम्बली तहलील करने का कह दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से असम्बली तहलील करने का कह दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी को असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दे दी है। कौम को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि आप सब इलेक्शन की तैयारियां कर लें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म का कहना है कि अब से थोड़ी देर के बाद असेंबली को तहलील कर देंगे और इस तरह अब पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी और वो फैसला करेगी कि इंतखाबात कब होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर अब इस बात का कह दिया है कि अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम सब मिलकर इस वक्त इलेक्शन की तैयारियां करेंगे, और जितने भी यानी 2 या 3 माह का वक्त आता है इलेक्शन की तैयारियों के लिए, इसलिए उसके अंदर निगरान हुकूमत बनेगी और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए असेंबलियों को तहलील करेंगे और उसके बाद नए इंतखाबात का मरहला होगा। उससे पहले निगरान हुकूमत बनेगी और वो इस बात का तयन करेगी कि कब इंतखाबात होते हैं और तमाम तर तैयारियां निगरान हुकूमत करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जैसा कि पहले 12 अपनी मुतादिद दफा गुफ्तगू में कहा था कि आज के दिन यानी इतवार वाले रोज 3 तारीख को सरप्राइज मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह सरप्राइज दिया है कि डिप्टी स्पीकर ने पहले अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया और उसमें उन्होंने सदर मुमलिकत को असेंबलियां तहलील करने की तजवीज़ दी। और वज़ीर आज़म इमरान खान की तजवीज़ पर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का यही कहना है कि अब से थोड़ी देर के बाद असेंबली को तहलील कर देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम को कहता हूं अब इलेक्शन की तैयारी करें और जो हक और सच और सही चीज है उसका फैसला करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का आवाम से ऐसा कहना है कि जो भी हक पर होगा और जो बैरूनी साजिश का शिकार हुआ उसको आवाम मुस्तरद करेंगे। तजियाकार बजर बरलात साहब हमारे साथ लाइन में मौजूद है। बजर साहब, सरप्राइज दे दिया है हुकूमत ने, कौम को भी और ऑपोजिशन को, तो मेरे ख्याल में शौक लग गया होगा। बिल्कुल, ये आपने सही फरमाया, अपोजिशन शौक में है कि उनके साथ हाथ कैसा हो गया है। और मेरी इत्तलात ये है कि गुज़श्ता रात मुक़्तदर कुव्वतों में और वज़ीर आज़म पाकिस्तान में ये काफ़ी चीज़ों पे डिस्कशन हुई और इसमें वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं इस्तीफ़ा तो बिल्कुल नहीं देता और अदम एतमाद को भी मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। तो फिर मेरा ख्याल है इस पे बात खत्म हो गई थी कि फिर असेंबलियां तहलील हो जाएं। तो ये एक अच्छा फैसला है। अपोजिशन भी यही चाहती थी, नए इलेक्शन, बल्कि कई मरतबा हमने देखा भी कि ये मुतालबा करते थे कि नया इलेक्शन करवाया जाए। अब जब नए इलेक्शन की तरफ जाएंगी पार्टियां तो इमरान खान के पास एक मजबूत बयानिया है और वो मजबूत बयानिया अमेरिका की मुखालफत का है, वो मजबूत बयानिया पाकिस्तान से हमदर्दी का है, वो मजबूत बयानिया इस्लामोफोबिया के तहत है। तो ये जो हमारे दोस्त अपोजिशन वाले हैं, अब वो क्या अपना इत्तेहाद बरकरार रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे और कौन कैसे इलेक्शन लड़ेगा, ये अब वक्त बताएगा कि क्या कुछ हो सकता है। उनको पंजाब के गवर्नर से थोड़ी जो भी शिकवा शिकायत था वो उन्होंने आज सुबह तब्दील कर दिया। अच्छा मजहर बरलात साहब, ये सब जो कुछ भी आज हुआ है, जो प्रैक्टिस हुई है, ये तमाम चीजें आप समझते हैं कि आइन की हुदूद में रहते हुए स्पीकर ने जो तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया और ये सब कुछ जो वजीर आजम ने सदर मुमलिकत को एडवाइस की, सब कुछ जो आज हुआ है आइन की हुदूद में रहते हुए हुआ है? जी, आप बिल्कुल आइन की हदूद के मुताबिक हुआ है, इसलिए कि जो नए वजीर कानून है, जो वजीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। उन्होंने दीगर जो माहिरीन हैं उनसे मुशावरत के बाद ही ये चीजें की हैं और
सुप्रीम कोर्ट चंद दिन पहले ये कह भी चुकी है कि हाउस के अंदर जो कार्रवाई होगी उसमें हम मुदाखलत नहीं करेंगे, तो उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है। एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जब आ चुकी हो कि हाउस के अंदर स्पीकर जाने, हाउस जाने, उस पर हम मुदाखलत नहीं करेंगे। और बाकी वो फवाद चौधरी ने एक हवाला दिया, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने ये केस बड़ा मजबूत करके बनाया कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग करके पहले मनवा लिया कि ये बैरूनी साजिश है, और उसमें सारे सर्विसेज चीफ बैठे थे। तो जब वो बनवा लिया कि ये बैरूनी साजिश है, तो अब वो अदालत तो नहीं कह सकते कि ये बैरूनी साजिश नहीं थी। उसके बाद आज जो हवाला दिया आर्टिकल 5 का फवाद चौधरी ने, तो उस पर स्पीकर ने ज़ाहिर है अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया और बता दिया कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं, पाकिस्तान कोई भूटान या मालदीव या इस तरह का कोई मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में कोई बैरूनी ताकत हुकूमत तब्दील नहीं कर सकती। उसके फौरन बाद आप देखिए ना टाइमिंग, या अपोजिशन की ज़ाहिर है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होगी इजलास के बाद, वो भी नहीं हो पाई, तो वजीर आज़म का खिताब शुरू हो गया और उन्होंने उस खिताब में एक तो कौम को मुबारकबाद दी और साथ ही असेंबलियां तहलील करने की बात कर। जी मजहर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। तंजीला भी हमारे साथ मौजूद है। तंजीला मजहर, सब लोग बहुत मुख्तसर खिताब कर रहे हैं। आज वजीर आजम ने भी मुख्तसर खिताब किया, स्पीकर ने भी बहुत मुख्तसर सी रूलिंग दी, फवाद चौधरी ने भी मुख्तसर बात की, मैं भी मुख्तसर बात करती हूँ। सरप्राइज्ड हैं या शॉक हैं? देखिए अफसोस है मुझे, तो ना सरप्राइज है ना शौक है। मैं एक्सपेक्ट करती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई गैर आईनी ही तरीका इस्तेमाल करेगी। ये बच्चों वाला गेम है, जैसे आप वो खेल रहे होते हैं ना, दो बच्चों के गुल्ली डंडे की गेम है, और गली मोहल्ले में जो क्रिकेट होती है विकेट उठा के आप भाग जाए और आप कहें कि नहीं मैं आउट नहीं हुआ। तो मदर साहब तो खैर बहुत संजीदगी से सारी सिचुएशन को का तजिया करें, मैं तो हंस रही हूँ क्योंकि देखिए खान साहब को 3 हफ्ते से उनके अपने लोग कह रहे थे आप इलेक्शन करवा लो। उनको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी जो जवाब आया था वो यही था कि आपके पास एक फेस सेविंग है, आप इंतखाबात करा लें। मान ही नहीं रहे थे, उनको किसी मुआवजे का ख्याल था। कल तक उन्हें लग रहा था कि अवाम ऐसे बाहर निकलेगी और मैं जो हूँ वो मोहम्मद बिन कासिम और उनसे बड़ा लीडर बन जाऊंगा। वो अब उनको वो भी उधर से भी कन्वे किया गया कि भाई आप इस तरह से मुल्क को क्यास में नहीं लेके जा सकते। बदकिस्मती की बात है, उन्होंने अपनी हार का यकीन किया, उन्होंने अपने आप को हर तरह से वो कमजोर साबित करने के बाद आज आके कौम को मुबारकबाद दे दी। लुक एट हिज फेस, मतलब ये तो बिल्कुल बचगानापन उन्होंने किया। उन्होंने कहा था वज़्न एतमाद को फेस करेंगे खुद पार्लियामान में, और इतनी अना है उनमें कि वो पार्लियामान में भी नहीं आए, तो ऐसे फेस करते हैं वज़्न एतमाद को। मेरा ख्याल है खान साहब ने ये गद्दारी का कार्ड खेला है अगले इलेक्शन की तहरीक के लिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल और जो उन्होंने एक पॉलिटिक्स की है बड़ी इमेच्योर है। उनके वोट बैंक को हो सकता है इससे थोड़ी सी मोटिवेशन थोड़े अरसे के लिए मिले, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं हुई भी। अब ये लड़ाई है, ये केयर टेकर के ऊपर लड़ाई है। हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ ये बैठना नहीं चाहते। कानूनी तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद और कायदे अवाम ने मिल के तय करना है कि केयर टेकर सेटअप कैसे बनेगी। तो ये अब लड़ाई है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। पहले ही इमरान खान साहब को एतमाद नहीं है, उनको वो हुकूमत का नुमाइंदा कह चुके हैं। तो आई थिंक कि इन्होंने मजीद क्योस में अपने आप को और पाकिस्तान को लैंड करा दिया है। अभी जो अहम चीज़ें होंगी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया जाएगा, क्योंकि जो आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि जिस तरीके से रूलिंग दी है डिप्टी स्पीकर ने, और जो खान साहब ने जो इस तरह से ऐलान इलेक्शन का कर दिया। खान साहब तो इलेक्शन का ऐलान नहीं कर सकते, इलेक्शन का ऐलान तो कोई मुतलका इदारा करता है। तो थिंग्स हैव टू बी अनफोल्ड। अभी देखते हैं क्या होता है। आईनी और कानूनी माहिरीन की राय भी हम अपने साथ शामिल करेंगे। सना हाशमी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सना, आप सुन सकती हैं मुझे? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। सना, क्या कोई क्लेवर मूव? बिल्कुल ठीक। दोनों जो सीनियर शख्सियात हैं, मजहर बरलास और तंजीला मजहर, उन्होंने अपना अपना नुक्ता निगाह दिया है, नुक्ता नज़र बयान किया है। मेरे ख्याल में जो इत्तलात थी हमारे पास कल से वो यही थी कि यही मूव है जो फेस सेविंग, जैसे अभी तंजीला कह रही थी कि बहुत दिनों से
प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस किया जा रहा था कि वो अली इलेक्शन की तरफ चले जाएं, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर वो ये नहीं कर रहे थे। लेकिन शायद आप कुछ किया है पार्लियामान के अंदर, मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये तारीख का हिस्सा ज़रूर बनेगा। और ज़ाहिर इस पर जब आपने अभी कहा कि हम कानूनी पेचीदगियों का भी अहाता करेंगे, जिस अंदाज से रूलिंग दी गई है, जिस अंदाज से इस अदम एतमाद की जो तहरीक थी उसके बारे में कहा गया कि हम इसको मुस्तरद करते हैं, जब ऐसे ही सारे मामलात को ऐवान के अंदर लेकर आना था तो मेरा नहीं ख्याल था कि इस पर इतना लिंगर ऑन। और फिर बार बार प्राइम मिनिस्टर खुद खिताबात कर रहे थे, उनके अरकान बार बार कह रहे थे, उनके सारे लोग मिनिस्टर्स कह रहे थे कि हमारे पास 172 से ज्यादा लोग होंगे। आई थिंक ये बहुत बड़ी सुबकी हुई है आज। अगर आप देखें अपोजिशन के लिए शायद किसी हद तक, लेकिन जहां तक मुझे अंदाजा है अपोजिशन इस पे शॉक नहीं होगी, क्योंकि उनको अंदाजा था कि जो हुकूमत वक्त है वो इसी तरह का कोई मूव लेगी। कल जब अगर मैं गलती पर नहीं हूं बल्कि परसों भी अटॉर्नी जनरल से जो मुलाकात हुई है मौजूदा वजीर आज़म इमरान खान साहब की, उन्होंने उनको यही एडवाइस किया था कि ये सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल सकते तब वक्त है कि आप असेंबलियां डिसॉल्व करने की तजवीज़ प्रेसिडेंट को नाम भेज दें। लेकिन जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें बहुत ताख़ीर की गई है। अब देखना यह है कि अपोजिशन इस सारे मामले को कैसे लेती है। मामला ये भी है शायद अहम तरीन कि इस वक्त जो सरफेस पर इस वक्त तो इंपॉर्टेंट चीज है मेरे ख्याल में, मजहर साहब से भी पूछती हूँ, फिर तंजीला से भी। तंजीला पहले आप बताइएगा, फिर मजहर साहब की तरफ चलते हैं। ये बताएं कि अब जो मूव है वो तो ज़ाहिर है सदर के पास है, सदर ने बता देंगे कि हमने असेंबलियां तहलील कर दी, फिर इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, लेकिन इस सब के दौरान फिर अपोजिशन किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करेगी? उनके लिए शायद आपको लगता है कि ये एक आम सी बात थी क्योंकि इतनी पुरानी उन्होंने जमहूरियत में सारी चीजें प्रैक्टिस कर रखी हैं कि इट्स नथिंग न्यू फॉर देम? जैसे मैं पहले कह रही हूँ न्यू तो है। देखिए, आपने एक आखिरी लम्हे में भी आप एक यू टर्न लेके और आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सारी चीज करके, मतलब ये आई है, ये मजाक तो नहीं है कि आप इस तरह से कहें। तंजीला, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू हियर शॉर्टली, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैं अभी देख रही हूँ और वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हैज वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, डिड नॉट अलाउ द वोटिंग ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन, द यूनाइटेड ऑपोजिशन इज नॉट लीविंग द पार्लियामेंट, आर लॉयर्स ऑन देयर वे टू द सुप्रीम कोर्ट, we call on all institutions to protect, uphold, defend and implement the constitution of Pakistan. So आपको मेरे ख्याल में मैंने इसलिए हाँ जी मैं भी पढ़ रही हूँ जो आप पढ़ रही हैं, साथ साथ मैं देख रही हूँ। देखिए, ये तो अपोजिशन ने फौरन ही जैसे ही ये इजलास खत्म हुआ था तभी ऐलान हो गया था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, खान साहब के पास अखलाकी तौर पे तो मेजॉरिटी नहीं रही और खान साहब जो हैं वो इस मुल्क के इंतखाबात का अकेले इस तरह से फैसला भी नहीं कर सकते। सही बात है। एक पूरा प्रोसेस होता है, आपको एक निगरान सेटअप बनाना होता है और निगरान सेटअप जो है वो वजीर आजम और जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है वो मिलकर बनाते हैं। तो खान साहब ने तो बिल्कुल ही ये मतलब किचन कैबिनेट जिस तरह से उनकी एडवाइस करती है, मुझे समझ नहीं आती कि वो खान साहब को क्या बना के पेश करना चाह रहे हैं और खान साहब को वो कैसे मशवरे दे रहे हैं। बहुत आसान लफ्ज़ों में ये थी कि वो पिच जो है ना वो तोड़ फोड़ के रिक्शे उठा के भाग गए हैं और ये मजाक है इस मुल्क के आइन के साथ भी, कानून के साथ भी और इस निज़ाम के साथ भी। और आप देखिएगा कि इस मजाक की कीमत हमें कितनी अदा करनी पड़ेगी। क्या हम हैं इलेक्शन के लिए तैयार? क्या हमारे पास जिनका करके आए थे वो करके गए? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मजहर साहब, आप अब ये बात जो तंजीला रेस कर रही है ना, आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप एक पोजीशन पर होते हैं और उसमें कहीं ना कहीं आप कवानीन के हुदूद और क़यूद के अंदर मौजूद होते हैं, वायलेशन लगती है आपको, और अगर ये हुकूमत कर बैठी है तो फिर इसके रिपरकशंस क्या होंगे मुस्तकबिल में? देखिए, एक तो मैं मोहतरमा तंजीला मजहर साहबा की इस बात का जवाब दे दूं। जी सर। जो वो अभी फरमा रही थी कि 3 हफ्तों से वो असेंबली तहलील कर सकते थे या नए इलेक्शन की तरफ जा सकते थे। देखिए, नए इलेक्शन की तरफ वो जा सकते थे, मगर वो उस वक्त नहीं जा सकते थे जब अदम एतमाद उनके खिलाफ पेश हो चुकी थी। ड्यूरिंग अदम एतमाद वो ना असेंबलियां तहलील कर सकते थे। इस्तीफे का तो वो इनकार कर रहे थे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि गुज़श्ता रात कोई मुक़्तदर हुकूमतों के दरमियान और वज़ीर आज़म के दरमियान बातचीत हुई है। देखिए, मुखालफत बराए मुखालफत से हट के हमें ये सोचना चाहिए
کہ عمران خان نے اپنا مقدمہ بڑی چالاکی سے ہوشیاری سے بنایا. انہوں نے پہلے جو ادارے ہیں ان سے منوایا کہ یہ بیرونی سازش ہے, اور وہ جو اجلاس کیا نیشنل سیکورٹی کونسل کا, اس میں ہماری فورسز کے سروسز چیف جتنے تھے انہوں نے سب نے مانا کہ یہ بیرونی سازش ہے. اور جب وہ مقدمہ بن گیا بیرونی سازش کا, اداروں نے مان لیا کہ بیرونی سازش ہے, تو پھر یہ قدم اٹھایا گیا آرٹیکل 5 والا. اب جو سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں تو سپریم کورٹ تو پہلے رولنگ دے چکی ہے 2 ہفتے 1.5 ہفتہ پہلے کہ اسمبلی کا جو کاروائی ہوگی, ہاؤس کی جو کاروائی ہوگی, اس میں ہم نہیں مداخلت کر سکتے. اب کون سے آرٹیکل کی تشریح چاہتے ہیں؟ جب سپریم کورٹ نے خود کہہ دیا ہے کہ جناب والا جو ہاؤس کے اندر کاروائی ہوگی اس پہ ہم نہیں کچھ کر سکتے, تو آئین کی تشریح تو انہوں نے کر دی. آج جو بات کی ہے, اب میرا خیال ہے اور ابھی مزید جو سرپرائز ہیں وہ تیار نہیں. آرٹیکل 6 لگانے کی جو باتیں کر رہے تھے نا وزیر اعظم تھے, وہ اب خود غداری کے مقدمات فیس کرنے کے لیے تیار رہے. ان کے ساتھ ہاتھ جو ہوا ہے نا اپوزیشن کے, یہ ساری رات تیاری کرتے رہے آرٹیکل 6 کی, اور پیپر میں آرٹیکل 5 آ گیا. یہ تو اب ان کو ہوش نہیں آ رہا کہ یہ کریں گے کیا, اور وہ جو پی ڈی ایم تھی وہ کیا کرے گی, وہ بکھر گئے سارے, اور وہ جو ان کے خواب تھے میاں شہباز شریف کے وہ سارے چکنا چور ہو گئے. اور کل دیکھیے وہ ارشاد جو حسین حقانی کی باتیں بھی سامنے آ گئی کہ انہوں نے 3 مارچ کو میاں نواز شریف سے ملاقات کی, اور کیا سپریم کورٹ کو میمو گیٹ اسکینڈل یاد نہیں, کیا ہمارے اداروں کو میمو گیٹ اسکینڈل یاد نہیں؟ تو میمو گیٹ اسکینڈل ہی کے ایک کردار نے بیچ میں شامل ہو کے یہ بہت سا کھیل بنایا ہوگا. پھر کن کن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی؟ رانا ثناء اللہ صاحب پاکستانی میڈیا کے سامنے کہہ چکے ہیں کہ میں جو نواز شریف کی امریکن یا برٹش اسٹیبلشمنٹ سے باتیں ہوئی ان سے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا, میری زبان بند ہے. جی